So, team, in the last class, we have started the unit 3, that was material and inventory management, in which we have studied about the introduction to inventory management. What are the basically benefits of inventory management? Like there were six benefits that we have studied, which included cost reduction, improved cash flow, efficient operation, better customer services, data accuracy. Later, we discuss about the accounting for inventory, like how do we LIFO and last in first out and first in first out FIFO works, how raw material work in process, finished goods, merchandise, etc. are responsible. Then we discuss about the inventory management method. First was just in time management, and then we discuss just in time in detail. Later, we discuss about types of uh, production planning. Okay, like we discuss about job based planning, batch method, flow method, mass production method, process manufacturing method, and after that we discuss about the benefits of production planning and control, right? And objective was done. After that, phases of production planning and control, and then just in time was given in brief. Now we are going to start from the Kanban. Let me know if you have any query up till now. You can put it on chat. I'll take it ahead. We'll start with the Kanban. So Kanban is a very, very popular framework used to implement agile and DevOps software development. It requires real-time communication and capacity of full transparency of work. So इसमें क्या होता है, कहीं भी आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी टास्क आप कर रहे हैं, कोई भी एक एक प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, तो आपको अपनी सारे इंटरनल टीम को, जितने भी उस टीम उस पूरे टास्क में इन्वॉल्व हैं, जैसे ऑपरेशंस में सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, यू हैव टू अपडेट एवरीवन ऑन रियल टाइम बेसिस के हमारा प्रोजेक्ट अभी किस टाइम पे है, किस स्पेस पे है, एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस. दे शुड बी ट्रांसपेरेंसी, कुछ मतलब आप छुपा नहीं सकते. So that is one of the highlighting part of the Kanban. And work items are represented virtually on Kanban board होता है एक, उसमें allowing team member to see the state of every piece of work. So एक board होता है, उस पे आपको पता लगता है कि हर पीस मतलब हर एक फैक्टर पे कितना उसका इफेक्ट पड़ा है कैम्बेन का, एंड व्हाट आर द अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एंड हाउ थिंग्स विल अनफोल्ड, व्हाट टाइम इट इज गोइंग टू एक्सपेक्ट इट. सो वो वहाँ से आप विजुअली वहाँ से देख सकते हो. तो कैम्बेन इज बेसिकली enormously prominent among today's agile and DevOps software teams, but the Kanban methodology of work is ये बहुत पुरानी मेथोडोलॉजी है, लाइक वो टाइम एंड अगेन इवॉल्व हुई है, लेकिन ये बहुत 50 ईयर्स पहले से चलती आ रही है. जैसे 1940 में टोयोटा का ने, जैसे आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में, बिगन ऑप्टिमाइजिंग इट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन द सेम मॉडल, बट द सुपरमार्केट वर यूजिंग स्टॉक their shelf. Supermarket stock just enough product to meet consumer demand, a practice that optimizes the flow between supermarket and the consumer. Because inventory level matches the compensation patterns, the supermarket gains significant efficiency in inventory management by decreasing the amount of excess stock it must hold by it given any point of time. Meanwhile, the supermarket can still ensure that the given product and a consumer needs is always in a stock. So अब जैसे टोयोटा ने अप्लाई किया इन द सेम सिस्टम टू इट्स factory floors, the goal was to better align their massive inventory levels with the actual consumption of material. To communicate capacity level in real time of the factory floor, workers would pass a card or Kanban between teams. When a bin of the material being used on the production line was emptied, a Kanban was passed to the warehouse describing what material was needed. सो द एग्जैक्ट नाम मटेरियल विल कम. सो जैसे उसमें ना जैसे सुपरमार्केट आज से 50 ईयर्स पहले जब पूरा स्टार्ट हुआ था, तो उसमें जैसे कुछ अगर स्टॉक कम हुआ है सुपरमार्केट से, फॉर एग्जांपल शुगर वहाँ से उठा ली गई है, सो कैनमैन बोर्ड पे इट विल शो कि इतने की ज़रूरत है, तो इमीडिएटली वो आकर रिफिल कर देगा. तो इससे कस्टमर हमेशा सेटिस्फाई रहते थे, प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल रहता था. तो एंड उससे पता लगता था हाउ मच इज़ द डिमांड, एंड उसकी वजह से ना तो ओवर प्रोडक्शन होता था, कस्टमर एफिशिएंसी, एवरीथिंग यूज्ड टू बी वेरी गुड. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग. And when a bin of material being used on the production line was emptied, a Kanban was passed, right? So the warehouse would be a new bin and then material waiting, which they would then send to factory floor and then in turn send their own Kanban to suppliers. So ऐसे
पूरा ये पता लगता है इन कैनबन फॉर सॉफ्टवेयर। ये पूरा ऑफ कोर्स जब भी हम कर रहे हैं डिस्कस, वो पूरा एक सॉफ्टवेयर पे होता है। तो agile software development teams today are able to leverage the same just-in-time principle by matching the amount of work in progress to team's capacity, कि कितना काम हमारा भी रह रहा है, क्या इन प्रोग्रेस है, क्या बैकलॉग में है, किसकी टेस्टिंग चल रही है, कोई ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे है। तो ये आपको अपना रियल टाइम अपडेट आप दोगे तो पता लगता रहेगा हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पे है, हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे। तो उसके बेसिस पे आप अपना परचेज ऑर्डर कर सकते हो या फिर सप्लाई कर सकते हो। आपको पता रहेगा कि ओके इस उसके प्रेजेंट सिनेरियो के बेसिस पे वी आर गोइंग टू मेक द कॉल, right? So while the core principle of framework are timeless and applicable to almost any industry, software developer teams have found particular success with the agile practices. In part, this is because a software team can begin practicing with little or no overhead once they understand the basic principle. So, unlike implementing Kanban on a factory floor, which could involve change to physical processes and the additional of substantial material, the only physical thing software teams need a board and a card, which even those can be virtual. मतलब ये बिकॉज सॉफ्टवेयर अभी आ गया, सॉफ्टवेयर तो सब कुछ आपका लैपटॉप या कंप्यूटर में रहेगा, तो आपको हाथ मतलब वर्चुअली कुछ लेना, आप अपना हाथ जस्ट टू मेक नोट्स आप पेपर पेन ले सकते हो, बट वो भी आजकल सब एवरीथिंग इज वर्चुअल। तो कैनबन बोर्ड का अगर हम डिस्कस करें कि ये बोर्ड कैसा दिखता है, सो द वर्क ऑफ ऑल कैनबन बोर्ड revolve around the Kanban board, a tool used to visualize work and optimize the flow of work among the team. While physical boards are popular among some teams, visual boards are crucial features in any agile software development tool for their traceability, easier collection, and accessibility from multiple locations. Regardless of whether a team's board is physical or digital, their function is to ensure that the team's work is visualized, their workflow is standardized, and all blockers dependencies are immediately identified and resolved. So basic Kanban board can be a थ्री स्टेप, मतलब एक पूरा एक थ्री स्टेप हो सकता है, मतलब बेसिक। अब ऑफकोर्स वो टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कि कैसा हो। सबसे पहला था टू डू इन प्रोग्रेस। सबसे पहला था टू डू कि हमें क्या करना है। तो अब कोई भी अगर आप मीटिंग करते हैं उस दिन की, हम अपना स्टेटस देखते हैं कि प्रोडक्ट का, तो हम सबसे पहले पता लगना चाहिए कि टू डू मतलब हम व्हाट आर वी डूइंग गोइंग टू डू, हमारा इन प्रोग्रेस क्या क्या है, एंड व्हाट वी हैव डन। सो आप देख सकते हो टू बोर्ड इज डिवाइडेड कॉलम इनटू three representing different stage. First is to do, in progress, testing, and done. So, however, depending on a team size, structure, and objective, this workflow can be fluctuated and mapped to meet the unique process or system. The Kanban methodology relies upon a fully transparency of work and real-time communication of capacity. Therefore, the Kanban board should be seen as a single source of truth for teams' work. Right. कमिंग टू कैनमैन कार्ड्स। सो कैनमैन कार्ड बोर्ड तो आप समझ गए, पूरा एक बोर्ड है, उसके अंदर डिफरेंट कार्ड्स हैं। तो कार्ड रिप्रेजेंट करते हैं कि विजुअल सिग्नल्स फ्रॉम कैनमैन टीम्स। एवरी वर्क आइटम्स इज रिप्रेजेंटेड एज अ सेपरेट कार्ड ऑन द बोर्ड। द मेन पर्पज ऑफ रिप्रेजेंटिंग वर्क एज अ कार्ड ऑन द कैनमैन बोर्ड is to allow team members to track the progress of work through its workflow in a highly visual manner. The Kanban card features critical information about the particular work item, giving the entire team full visual visibility into the who is responsible for what, and what is a brief description of job, how are we going to work, and how long the piece of work is eliminated to take, and so on. So ये सब क्वेश्चन हमें इस कार्ड के थ्रू पता लगते हैं। कार्ड ऑन द वर्चुअल कैन बोर्ड विल ऑल्सो फीचर्स स्क्रीनशॉट and other technical details that is valuable to the assignee, allowing team members to see the state of every work item at a given point of time as well as of those associated details ensures increased focus, full traceability, and fast identification of backlog and disappearances. सो अब अगर आप बेनिफिट ऑफ कैनबैन देखोगे तो मतलब इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, और जो टीम से आपकी अजाइल टीम्स होती हैं या फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम्स होती हैं वो करती हैं आपका प्रोजेक्ट या फिर किसी भी प्रोसेस को मैनेज करने के लिए। कैनबैन ऑफर सेवरल एडिशनल एडवांटेज टू टास्क प्लानिंग एंड थ्रू आउट फॉर ऑल द साइजेस। Planning flexibility मतलब a Kanban team is only focused on the work that activity is in progress. Once the team completes a work item, they plug the next work item off the top and the backlog. The product owner is free to reprioritize the work in the backlog without disturbing the team because any changes outside the current work item doesn't impact the team.
सो ये आप देख सकते हो कि आप बिकॉज एवरीथिंग विल बी विजिबल ऑन बोर्ड, तो आप वहाँ से बता सकते हो कि अच्छा बैकलॉग में ये है, तो टीम का कोई भी मेंबर उस काम को उठा के अगर वो रिस्पॉन्सिबल है तो वो कर सकता है. So this is the benefit of this. It's very flexible to work. I hope that is all about the Kanban. Next हमारा topic है types of inventory. So there are various types of inventory based on physical form. First is there are three types of inventory based on physical form. First is raw material inventory. So raw material inventory basically comprises of raw material, components, fuel, etc., which are required to facilitate manufacturing operations. So we can describe them as consumable. Right, this type of inventory is maintained for smooth conduct of manufacturing operations. The purpose is to ensure that the production process does not come to standstill. It is generally located in the production support warehouses or manufacturing plants. दूसरी आती है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री. So it is the inventory of semi-finished product which are yet to go through some production operations. Its purpose is to smooth the production process. It is also held to adapt the uncertainty of demand. Sometimes the demand for the final process is fluctuating, hence the inventory is held in form of semi-furnished state, and the final processing or assembling is done when the exact level of demand is ascertained. So it is basically, generally located in the manufacturing plants or distribution centers for final assembly purpose. तीसरा आता है, अभी तो पहले रॉ मटेरियल था, वर्क इन प्रोसेस, and now third is finished good inventory. So it is purpose to meet the market demands for the product and to maintain the desired level of customer services, and it is generally located at the distribution centers of field warehouses. Right. फिर दूसरा आता है, this is तो based on the physical form. Second is based on the inventory position in the supply chain. तो इसमें सबसे पहले आता है सप्लायर. Supplier of raw materials and the components needed to maintain inventory to meet unexpected increase in the demand from the manufacturer. So here इसमें क्या होता है कि nature of inventory is based on the derived demand. कि demand आपकी कितनी है उस basis पे is going to be the supplier inventory. Second is manufacturer. Manufacturer has an maintain inventory of material ranging from raw material to finished good. there there are number of stock कीपिंग यूनिट होती है, मतलब स्टॉक उसमें होता है, तो स्टॉक आपका कितना अवेलेबल है, तो ये मतलब बेसिकली हेल्प करता है. इन्वेंट्री नीड्स टू बी मेंटेन. मैन्युफैक्चरर्स कैरीज द हाईलाइटेड इन्वेंट्री रिस्क टू द होल सप्लाई चेन टू range stock keeping unit. So the investment in the inventory is higher than the supply chain participant. Third आता है wholesale. Wholesaler needs to keep the finished good to satisfy orders from retailers. They generally take a long-term view rather than retailers than inventory exposure or risk. And fourth आता है लास्ट में retailer, right? अब जैसे आपको कोई भी अगर फॉर एग्जांपल कोई आप किराना की शॉप देखते हो तो उसमें सप्लायर होता है जो आपका फॉर एग्जांपल सॉल्ट सप्लाई कर रहा है, मैन्युफैक्चरर्स को रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करेगा, फिर होलसेल में जाएगा, एंड देन अल्टीमेटली इट विल कम टू स्मॉल शॉप्स व्हिच इज कॉल्ड रिटेलर्स. So the retailers are the point of selling. They actually transfer the inventory from supply chain to the end user जो customer होते हैं जैसे हम लोग हैं. Retailer inventory is unique and identified from the supply from the other supply chain participants. A retailer has to maintain stock of variety of products from a number of manufacturers. Other supply chain participants carry inventory related to restricted number of product line which is manufactured by a single company. For example, yeah, like a typical supermarket जैसे होती है उसमें likely inventory होती है बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें supermarket में ज़्यादा inventory तो stock keeping unit आपके 10,000 से भी high होते हैं. Last आता है types of inventory on the basis of your inventory performance cycle, right? So इसमें सबसे पहला आता है एवरेज इन्वेंट्री. तो एवरेज इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मटेरियल, दैट इज रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड. The organizer needs to be decided the optimal level of inventory for each type of material in each facility location. That is plant, warehouse, distribution center. Average inventory includes cycle inventory, safe stock, and transit inventory. Right. Next is cycle inventory. The cycle inventory is also called base stock. So it is the part of the average industry which is equal to regular shipment process. The inventory level is maximum at the start of order cycle or performance cycle. Day-to-day demand or consumption result in
depletion of inventory on the regular basis. At some point of the time inventory level reaches zero, the order of inventory replenishment, that is a new stock, must be placed in advance so that the new stock arrives by the time inventory level reach zero. तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज इसमें आपके साइकिल चल रही है, अगर आपका स्टॉक कम होता रहेगा तो आप उसे इमीडिएटली फिल करते रहें इससे पहले कि वो जीरो हो जाए. तो replenishment inventory is called order quantity. So the average inventory which held in possession as a result of the ordering process is called base stock. So considering, तो इसमें कुछ बेस होता है कि भाई 50 यूनिट से कम किसी हालत में होने नहीं चाहिए. अगर 50 यूनिट से कम हो गए तो वो जीरो माना जाएगा. देन उससे पहले पहले आपको रिफिल करा लेनी चाहिए. फिर तीसरा आता है इसमें सेफ्टी स्टॉक इन्वेंट्री. Safety stock or buffer stock is that part of total inventory which is held as a protection against some unforeseen contingency or uncertainty in supply or demand situation. Considering safety stock, average inventory is equal to one half of the order quantity, right? Transit inventory is also called a pipeline inventory. It refers to the stock which is in transit. It means the stock is either moving in a transport vehicle or is awaiting movement at a transport terminal. So transit inventory is not in the possession of the owner, that is organization, hence it cannot be put to use. At the same time, it is a real asset and it has been paid for. Previously, there was a significant difficulty in identifying exact location of moving vehicle, but nowadays due to GPS system, it is possible to locate a vehicle en route and hence we can know the exact position of the transit inventory. So whether transit inventory is treated as a part of the inventory depending on the condition regarding transfers of ownership. If the ownership of the inventory is transferred at the origin, that is the start of journey में ट्रांसफर कर देंगे, तो देन इट शुड बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ ए एवरेज इन्वेंट्री, राइट, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी है. तो ये इसमें बहुत बड़ा लाइक ट्विस्ट है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ देन ओनरशिप ऑफ द इन्वेंट्री ट्रांसफर एज द डेट. अगर हमने ओनरशिप इन्वेंट्री की लास्ट में करी है देन इट शुड बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ एवरेज इंडस्ट्री, राइट, चाहे स्टार्टिंग में करें या फिर लास्ट में करें, राइट. तो जैसे अगर ऑर्डर क्वांटिटी आपका 100 यूनिट है, अब ऐसे आप समझिए, देन इफ देयर इज नो सेफ्टी स्टॉक देन एवरेज इन्वेंट्री इज 100 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 400 यूनिट. एंड इफ ऑर्डर क्वांटिटी आपका 100 यूनिट एंड सेफ्टी स्टॉक है आपका 200, तो देन इट शुड बी 100 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 500. I hope that makes sense. Please let me know if you have any query up till now on Kanban and types of inventories. Please put it on chat if you have any query. Sushma, you will get the PPT. Like I just have put bullet points and I'm just making you understand from there. Like I'm not, like I don't have anything from where I can read. I, team, please let me know if you have any query. Otherwise, I'll. Chandrasekhar is saying, sir, you have explained but the PPT only bullet point. Yeah, of course, PPT, I cannot put this much of text, right? PPT is needs to be precise and small crisp. Like PPT में अब मैं इतना text भरूंगा तो फिर 1000 slides की PPT हो जाएगी, which makes no sense. PPT में तो I would suggest कि आप सिर्फ points देखो और don't go मतलब I'm using both the languages and just focus on what I'm saying. फिर उसमें you can have queries. One second. Right types of inventory मैं आपको दिखा रहा हूँ. Sir, please repeat Kanban cards of fourth and third, fourth. बता दो safety. ठीक है, मैं इतना कर रहा हूँ. We'll start. So Kanban का मैं आपको बहुत ब्रीफ में समझा देता हूँ कि Kanban बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आपका जितने भी जैसे ऑपरेशन मैनेजमेंट में अलग अलग स्टेप है, मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड देन
डिलीवरिंग इट टू कस्टमर। जैसे ये मान लिया, फिर आपको कोई भी अगर प्रोजेक्ट होता है उसमें आप स्टार्टिंग फेज होता है जिसमें सारी टीम मिलती है, देन यू हैव किक ऑफ कॉल, फिर आप प्रोजेक्ट को डेवलप करते हो, फिर प्रोजेक्ट को इन प्रोग्रेस होता है, फिर डिलीवर करते हो, उसमें फीडबैक आता है। तो ये सब ना उस बोर्ड पे मेंशन होता है, एक एक सॉफ्टवेयर होता है, तो उस पर आप कहीं भी क्लिक करोगे पता लग जाएगा कि अच्छा ये वाला टास्क अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये वाला हो गया है, अगर हो गया तो कितना टाइम लगेगा, तो ये वाला टास्क बैकलॉग में चला गया, मतलब ये हमने नहीं किया है किसी ऐसे, तो ये बैक रह गया, तो अभी हमें उसको भी करना है। सो इट्स अ सॉफ्टवेयर जहाँ पे सब कुछ विजुअली आपको होगा, आपको जस्ट क्लिक करके टच करके पता करना है कि वो टास्क किस स्टेज पे है, अगर वो स्टार्ट नहीं हुआ है तो कब तक एक्सपेक्टेड है, कितने डेज में आपको वो करना है, कितना उसमें प्रोसेस है, जो जो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग ऑन। सो वो एक पूरा होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट उसके सेगमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं कैनमैन कार्ड्स। आई होप इट मेक सेंस। मैंने बहुत ब्रीफ में समझा बिकॉज ऑलरेडी डिटेल में बता दिया है। अंजलि, आई होप इट इज क्लियर, प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज थर्ड एंड फोर्थ इन्वेंट्री बता दो सेफ्टी इन्वेंट्री के। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केपीआई एंड कैनमैन कार्ड्स? बोथ आर ट्रैकिंग फॉर मनीष। केपीआई इज बेसिकली की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जैसे कोई भी आप प्रोजेक्ट करते हो उसका आपका कुछ टिक मार्क होते हैं, वो बहुत लिमिटेड होंगे, राइट? कि अब यू हैव टू टेक कि ये इसका क्वालिटी इतनी होनी चाहिए या फिर इसके बिलो नहीं होनी चाहिए। लेकिन कैनमैन विल इंक्लूड एवरीथिंग, कि आपको अपने टास्क के लिए एलोकेट हुई टीम के कौन कौन से मेंबर आए। तो केपीआई तो बहुत ज्यादा ब्रीफ में होता है, एंड सॉरी कैनमैन बहुत ज्यादा ब्रीफ में होता है, केपीआई कैन बी अ पार्ट ऑफ कैनमैन, बट इट्स नॉट मैंडेटरी दैट इट विल बी। ओके, आई होप इट्स क्लियर। मैं ये वाला ले लेता हूँ, थर्ड एंड फोर्थ इन्वेंट्री बता दो सेफ्टी, ठीक है, एंड दूसरा था एवरेज इन्वेंट्री। सेफ्टी इन्वेंट्री कौन सी है? सप्लाई चेन बेस्ड, अच्छा सेफ्टी वाला, उसने बोला एवरेज, बाकी तो आई थिंक क्लियर है। सो एवरेज में जिसने पूछा उसको एवरेज बता दो। सो एवरेज इंडस्ट्री सॉरी इन्वेंट्री बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंपोनेंट हो गया, पूरा वर्क इन प्रोसेस रहता है आपका, फिर आप फाइनली इसको डिलीवर कर देते हो। सो ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू डिसाइड द ऑप्टिमल लेवल ऑफ इन्वेंटरी फॉर ईच टाइप ऑफ। अब जैसे प्रोडक्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग फेज में है, बन गया है, अभी सेमी आधा बना है, तो हर उसके लिए अलग अलग इन्वेंट्री होगी कि कितना इस फेज में कितना रखना है। तो उस पे एवरेज, उसको एवरेज बोलते हैं कि हर मतलब हर फेज पे अलग अलग प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप पेस्ट्री बना रहे हो, तो अभी आपने आटा बनाया, देन जब वो नेक्स्ट फेज में चला गया तो ऑब्वियस बात है पहला जो बंदा जो पहला वाला फेज कर रहा है वो आप स्टार्ट कर देगा अगले बैच के लिए। तो आपको देखना है कि हर बैच में कितना कितना इन्वेंट्री होना चाहिए, और उसको फिर हम टोटल डिवाइड करके एवरेज इन्वेंट्री बन जाए। एवरेज समझ में आता है ना, कि सबका मतलब जैसे पहले में 5 था, अगले में 10, उसमें 15, ऐसे टोटल बना के डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो वो 10 हो गया एवरेज इन्वेंट्री। आई होप मतलब दिस इज द इजीएस्ट वे आई एम एक्सप्लेनिंग यू। किसी ने सेफ्टी बोला था, सेफ्टी मतलब होता है बफर स्टॉक। बफर आप समझते हो कुछ एक्स्ट्रा लेके रखते हैं एहतियात के लिए, कि किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई या फिर कुछ ओवर डिमांड आ गई, कुछ ऐसा हो गया, तो ये वाली इन्वेंट्री होती है विच इज हेल्ड एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सम अनफोर्सिंग, जैसे कोविड आ गया या फिर कोई ऐसी बीमारी आ गई, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उसके लिए सेफ्टी स्टॉक नाम से पता लग रहा है, राइट? आई होप। और ट्रांजिट, नाम ट्रांजिट सबसे इजी होता है कि मतलब आपको अपनी इन्वेंट्री बीच में किसी को दे देते हो, ट्रांजिट का मतलब ये होता है। तो अगर आपने स्टार्टिंग या लास्ट में दे दी तो ऑब्वियस बात है, वो बीच में तो नहीं दी तो वो एवरेज इन्वेंट्री में चली जाएगी, और अगर आपने बीच में दे दी तो इट विल कम अंडर ट्रांजिट इन्वेंट्री। ओके, आई होप गाइस इट्स क्लियर, थैंक यू। ट्रांजिट इन्वेंट्री आरजे आर आई होप इट्स क्लियर। ओके मनीष, वी आर यूज इन केपीआई ओनली। केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जैसे आप कोई भी अगर प्रोडक्ट डला रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, तो उसका कुछ मतलब उसका पर्पस होता है, तो वो आपको केपीआईज होते हैं। जैसे एज ए स्टूडेंट आपके केपीआई होते हैं कि यू हैव टू डू असाइनमेंट, यू हैव टू अटेंड क्लासेस, तो ये आपकी केपीआई हो गए। बट अगर मैं कैनमैन के पर्पस से एक स्टूडेंट को देखूँ तो मैं देखूंगा वो कब कॉलेज में आया है, कितनी क्लासेस उसने अटेंड की हैं, अभी वो कहाँ पे है, तो दैट विल बी कैनमैन। ओके गाइस, चलो, थैंक यू, इट वाज अ good question answer session, and let's go to the next topic. Okay, done. Key project indicator, yeah, that's KPI.
की परफॉर्मेंस भी बोल दो या की प्रोजेक्ट बोल दो, मतलब डिपेंड्स आप किस इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल की क्या क्या टेक्निक है। हमें इन्वेंट्री हमारी है, अब उसको कंट्रोल करना है, बिकॉज इन्वेंट्री अल्टीमेटली मैंने बोला था कि इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा हमने कर ली है तो भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आपके बाई चांस डिमांड नहीं आई तो आपका एक तो स्पेस खा रहा है बैठे बैठे, वो एक तरीके से लोड जा रहा है कि ना उसका आपको किराया देना है, प्लस वो खराब हो सकता है प्रोडक्ट, उसकी डिमांड हो सकती है आगे एकदम टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है तो वो प्रोडक्ट ही किसी काम का ना रहे। और अगर इन्वेंट्री कम है तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज देन इट्स नॉट अ गुड साइन कि अगर आपके पास ऑर्डर आया और आपके पास इन्वेंट्री नहीं है। तो हाउ डू वी कंट्रोल? सो बेसिकली इन्वेंट्री कंट्रोल ऑल्सो नोन एज स्टॉक कंट्रोल, इन्वेंट्री को कई जगह स्टॉक भी बोलते हैं। It consists of a system and procedures for managing inventory items in company warehouse. It monitors the movement of storage of goods in warehouse to help business maintain a sufficient supply in good condition. Establishing an inventory control system enables them to satisfy customer demands and maximize profit. So, inventory control is a key element of an inventory management system. Warehouse managers and production planners should be adhere to following activities and procedures in controlling the inventory. राइट? तो मतलब जैसे इसका, अगर आपका इन्वेंट्री बिल्कुल बैलेंस रहेगा, कंट्रोल रहेगा, तो आपकी कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो अल्टीमेटली प्रॉफिट ज़्यादा होगा ना, देन कस्टमर आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी। राइट? तो सबसे पहले इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स में आता है रिसीविंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग गुड। राइट? तो इसमें मतलब आपका अपना स्टोर कितना वो रिसीव कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, ट्रांसफर करो, यू हैव टू कीप एन आई किस फेज पे जा रहा है, तो ताकि वो अगला स्टॉक आप ऐसे ही लो। फिर प्लेसिंग आइटम इन स्ट्रेटेजिक लोकेशन। राइट? जो आप इन्वेंट्री में अलग अलग होते हैं, बिकॉज अगर आप मेडिसिन का देख लो या फिर मोस्टली चीज़ें उनका टेम्परेचर बहुत मेन होता है, मेडिसिन का स्पेसिफिकली अगर आपके इंजेक्शन होते हैं वो आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखने चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। फिर ट्रैकिंग इन्वेंट्री आइटम एंड देयर लोकेशन इन वेयर हाउस। राइट? एंड देन डॉक्यूमेंटिंग प्रोडक्ट डिटेल एंड हिस्ट्री। राइट? अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है तो आप उसका पूरे हिस्ट्री रखोगे, हिस्ट्री एज कि कहाँ से आया है, व्हाट डेट वो मैन्युफैक्चर था, उसके अगर पुराने प्रोडक्ट हैं तो कुछ उनका साइड इफेक्ट्स है, कुछ प्रॉब्लम आई थी, ताकि आप पूरी हिस्ट्री रखो। फिर अगर आपके जो प्रोडक्ट रखे हैं उसको आपको मॉनिटर करना है कि आप कितने दिनों से है, व्हाट आर, अगर उसका ऑर्डर आया है तो कब तक वो डिस्पैच होगा। तो यू हैव टू मॉनिटर एवरीथिंग अबाउट द पर्टिकुलर स्टॉक, देन फुलफिलिंग द परचेज ऑर्डर विद स्टॉक ऑन हैंड। जैसे आएगा आप स्टॉक भेजोगे, स्कैनर होते हैं, यू हैव टू बार कोड का आपको करना पड़ेगा स्कैन, एंड देन फॉर्म रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, जो भी हर किसी का अलग अलग प्रोसेस होता है रिपोर्ट बनाने का। ओके okay? फिर आता है इसके जो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं इन्वेंट्री कंट्रोल में। सबसे पहले आता है कि डिफरेंस बिटवीन इन्वेंट्री कंट्रोल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मतलब आप चाहो तो उसको मैनेज भी बोल सकते हो, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। तो ऑल्दो दीज टू कॉन्सेप्ट मतलब एक से लगते हैं, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन इन्वेंट्री कंट्रोल करने में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने में। इन्वेंट्री कंट्रोल करने में handles exiting stock in warehouses, while inventory management involves the overall movement of goods across supply chain. Right? And the table बेसिकली क्या होता है कि इन्वेंट्री कंट्रोल जो होती है वो होती है स्टॉक के ऊपर, जो मतलब फाइनल आपका बन गया है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, बट मैनेजमेंट वो थ्रू आउट प्रोसेस में रहेगी। राइट? तो टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में आ गए। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मेन इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, द पीरियडिक एंड द perpetual system। राइट? तो बेसिकली पीरियडिक इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम होता है कि टू रिकरिंग काउंट ऑफ गुड्स एट अ स्पेसिफिक इंटरवल। So in this system, warehouse managers manually count their inventory a monthly, quarterly, or annual basis, and the exact period of depends on the organization needs of a business activity. तो इसमें मतलब मैनुअली काउंट करते हैं अपनी अपनी इन्वेंट्री। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इट इज़ वेरी सिंपल एंड इजी टू मैनेज स्मॉल, जो स्मॉल इन्वेंट्री होती है, बड़े में तो आप ऑब्वियस बात है मैनुअली नहीं काउंट कर सकते। और इट डजंट रिक्वायर एनी, इसमें मतलब टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, बिकॉज यू जस्ट हैव टू काउंट। ऐसा नहीं कि आपको कोई टेक्नीशियन चाहिए या कोई बहुत बड़ा क्वालिफाइड इंसान चाहिए। सो इट्स वेरी इजी इसलिए करना है। एंड देन नुकसान इसका ये है कि इट इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस। ऑफ कोर्स आप वन बाय वन काउंट करोगे, चांसेस ऑफ एरर ज़्यादा है, बिकॉज मैनुअल कर रहे हो तो ह्यूमन एरर तो बहुत इजीली हो सकता है। सो दैट इज द डिसएडवांटेजेस, बट ये किसके लिए बेस्ट है? द पीरियडिक सिस्टम इज आइडियल फॉर ए स्मॉल कंपनीज विद जिनकी बहुत कम इन्वेंट्री होती है। जैसे केक का ही आप ले लीजिए, केक मोस्टली इतने बड़े बल्क में ऐसा नहीं कि लैक्स ऑफ ऑर्डर आ रहे हैं, हंड्रेड कुछ लिमिटेड ऑर्डर्स होते हैं, तो इसमें आप इंसान खुद कैलकुलेट कर सकता है।
या फिर कोई ना अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है घर से, उसके लिए। दूसरा आता है परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। द परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम provides an accurate count of inventory level in the real time. It utilizes technology such as barcode and radio frequency identification tags for tracking product. The information is then logged in a centralized database for the warehouse manager that can easily access. And its advantage is that the method removes the needs for manual counting. इसमें मतलब मैनुअल नहीं होती, ऑब्वियसली बात है, तभी वो डिफरेंट है. इट गिव्स वेयर हाउस मैनेजर अ स्नैपशॉट ऑफ द इन्वेंट्री काउंटर ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. सो डूइंग सो ड्रिवन डेटा ड्रिवन डिसीजन मेक्स. तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि inventory control software can be expensive to make, so moreover it might not be capture discrepancies due to product theft. Because ये एक्सपेंसिव रहेगा बहुत ज़्यादा, और सारे सॉफ्टवेयर है, और अगर किसी वजह से आपका प्रोडक्ट टूट गया है या डैमेज हो गया बिकॉज आप हाथ में लेके नहीं देख रहे हो, तो वो प्रॉब्लम कभी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. तो इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. पर फायदा क्या है, ये मेथड रिमूव करता है. तो मैनुअल जाएगा तो ऑब्वियसली मतलब टाइम कम लगेगा, चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर बहुत कम हो जाएंगे. सो डेटा ड्राइव डेटा डिसीजन मेकिंग फॉर सेल्स. बट ये किसके लिए बेस्ट है? द प्रपोजल सिस्टम वर्क बेस्ट फॉर कंपनीज लाइक मल्टीपल, जिनका मतलब मोस्टली लोग यही फॉलो करते हैं जिनके बड़े बिजनेसेस होते हैं, राइट. फिर आता है इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स. The inventory control techniques are various techniques for monitoring how stock moves in a warehouse. For four popular inventory control methods are ABC analysis, last in first out, and batch tracking and safety stock. Right. So this section explains how each of these method functions and how they can be support your businesses. Right. तो सबसे पहला आएगा आपका, one second. सबसे पहला आता है एबीसी एनालिसिस. राइट. तो एबीसी आप इस इमेज में देख सकते हैं. One second, team. I think before we start, because this is a long topic, let me know if you have any query up till now. So ABC analysis basically आप इस स्क्रीन से देख सकते हो. इट्स एन इन्वेंट्री कंट्रोल का एक मेथड है, जैसा हमने डिस्कस किया. इट डिवाइड्स इनटू थ्री कैटेगरीज बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस, आर टिपिकली मेजर्ड बाय एनुअल कंपनसेशन. मतलब जितना वो प्रॉफिट जनरेट करता है इतना उसमें कॉस्ट लगा होता है. फर्स्ट सबसे पहला आता है ए आइटम. तो ए आइटम होता है हाई वैल्यू एंड लो क्वांटिटी. मतलब उनकी पैसा तो ज़्यादा होता है पर क्वांटिटी बहुत कम रहती है. तो जैसे ये टिपिकली रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 10 to 20% ऑफ आइटम होता है ए में, लेकिन वो पैसा जो बनाता है वो 70 to 80% का कंपनसेशन कर देता है. सो इसमें इसलिए बहुत ज़्यादा टाइट रिक्वायरमेंट होती है. जैसे अब आप आईफोन लगा लीजिए, 3 यूनिट ऑफ आईफोन हो गया तो 3 लाख, अगर 1.5 लाख का तो 4.5 लाख. यूनिट तो थ्री है पर पैसा उसमें ज़्यादा है. फिर दूसरा आता है बी आइटम, लाइक मॉडरेट वैल्यू, मॉडरेट क्वांटिटी आइटम्स. यूजुअली 30% ऑफ आइटम होते हैं. कंपनसेशन वैल्यू इनकी बहुत कम होती है, 15 से 25 होती है एज कम्पेयर टू, उसका तो 80 था. सो इसका मॉडरेट इस पर नजर रखनी पड़ती है. फिर तीसरा आता है लो वैल्यू. उसमें क्वांटिटी तो भर भर के होती है लेकिन कंपनसेशन से ज्यादा नहीं होता, 5 to 10% होता है. तो इसमें सिंपलर कंट्रोल मेथड्स आर मोर देन इनफ, राइट. सो जैसे किसी फार्मा कंपनी में आप हो गया तो रॉ मटेरियल लाइक एक्टिव, जैसे दवाई बना, तो दवाई बनाने में आप फॉर एग्जांपल आप पैरासीटामोल बना रहे हैं, राइट. एस्पिरिन मेडिसिन का नेम हो गया, उसका जो सॉल्ट हो गया पैरासीटामोल हो गया, लेकिन उसके साथ और भी चीज़ें डलती हैं ताकि वो उसको बाइंड करके रखे. तो पैरासीटामोल तो मेन आइटम हो गया, तो दैट विल बी ए सेक्शन, बिकॉज वो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लस उसका कॉस्ट हाई है. जो उसके पैकेजिंग मटेरियल होंगे वो बी होंगे, एंड जो सबसे चीपेस्ट मैक्सीपियंट्स होंगे वो होंगे थ्री, मतलब सी, राइट. तो दिस इज लाइक बेसिकली एबीसी एनालिसिस. बट अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें, आप स्क्रीन पर मतलब जस्ट लुक इनटू स्क्रीन, यू विल अंडरस्टैंड बाय द पिक्चर्स. ओके. अब जैसा इसमें देख सकते हो, ए ने 70% ले रखा है, बी ने 20 एंड सी ने 10. So ABC analysis is the inventory control classifies stock based on their importance, price, and sales volume. The criteria determines the number of item a company will bring to market. Just an जैसे name suggest करता है, जैसे A highly expensive high class item with tight control and inventory, B average price, C low price. So applying the ABC analysis of inventory control allow businesses to maximize the control cost of. Okay. I hope it is clear. ABC analysis is not very complicated, easy है, बट थोड़ा इम्पोर्टेंट है. ओके. तो ये पूरा ABC हो गया.
Basically, okay. सो लाइक इसमें अगर आप देखेंगे कि वी आर मतलब व्हाट एबीसी एनालिसिस इन्वेंटरी कंट्रोल इज हाउ टू कंडक्ट एबीसी इन फाइव. अभी देखते हैं 5 स्टेप्स के कौन कौन से एबीसी एनालिसिस के. हमने एबीसी एनालिसिस पढ़ लिया, कैटेगरीज देख ली कि ए में आता है एसेंशियल गुड विद हाई वैल्यू, राइट. बी पढ़ लिया, सी पढ़ लिया. फिर आता है आपका सेगमेंट, क्योंकि इस 5 स्टेप्स में कैसे कंडक्ट करते हैं एबीसी एनालिसिस. So you can perform the ABC calculation on individual product group of inventory and wide range of inventory, and you can calculate them in 5 easy steps. So first सबसे पहले use the formula mentioned below. मतलब जैसे एक फॉर्मूला आपको भी नेक्स्ट उसमें दिखाऊंगा मैं. सो उसमें फॉर्मूला है कि एनुअल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू कॉस्ट पर यूनिट. जैसे मैंने आईफोन सेल किए हैं 1 लाख के, कितने सेल किए हैं 5, तो मैंने टोटल कितना किया सेल 5 लाख का, राइट. तो पहला सबसे पहला फॉर्मूला से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे. फिर दूसरा करेंगे एनलिस्ट ऑल द प्रोडक्ट इन डिस्क्राइबिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर एंड. सारे ऐसे प्रोडक्ट हम कर लेंगे, सबका वो बना लेंगे कितने प्रोडक्ट बेचे, कितने का टोटल से क्या आएगा. फिर टोटल द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एंड द एनुअल कंपनसेशन वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट दिखाएगा. कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ द एनुअल कंपनसेशन, राइट. मतलब जैसे 5 प्रोडक्ट बेचने पे 5 लाख रुपए की सेल हुई है, कहीं कहीं 10,000 प्रोडक्ट बेचने में 5 लाख की सेल होगी. तो वो आपको देखना है कि किस बेसिस पे हम आपको ए पे डालेंगे, बी पे डालेंगे, सी पे डालेंगे. फिर डिवाइड द डाटा इनटू 3 कैटेगरीज. अगर आपकी 80% के ऊपर है, जैसे 5, अगर हम 5 लाख को 5 नो करेंगे तो इट विल बी लाइक 3 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो इट विल बी मोर देन 80%. तो वो ऑटोमेटिकली ए में चला जाएगा. अगर वो 15 और के पास आ रहा है तो इट विल कम इन बी, और अगर वो 5 के क्लोज आ रहा है तो इट विल कम इन टू सी. So this is how you are going to divide data into ABC analysis. Talking about the benefit of ABC analysis, basically most of the organization have a huge amount of stock keeping units, yet they have not been able to prosper or upscale their business significantly. There are many other challenges in inventory management that businesses have to handle. Challenges may include lack of information on stock, a weak management process, difficulty in managing employee space, and so on. ABC analysis is a solution to this problem. It can consist of the companies to streamline and optimize their inventory management. राइट. तो सबसे पहला बेनिफिट आ गया एनालाइज कस्टमर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट. एनेबल नेगोशिएशन विद सप्लायर, कि भाई आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है. बिकॉज अगर ना अगर आपका हाई वैल्यू प्रोडक्ट भी ज़्यादा बिक रहा है तो आप उस हिसाब से नेगोशिएट कर सकते हो. फिर आपको पता है कस्टमर सर्विसेज कहाँ इंप्रूव करनी है, मैन्युफैक्चर आपको कहाँ पर अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्योंकि वो पहले से प्रॉफिट कम लेके आ रहे हैं, बट दे आर ऑल्सो ब्रिंगिंग प्रॉफिट, तो वो भी करेंगे. एंड देन वेयर हाउस मैनेजमेंट आप उस हिसाब से करोगे. सो ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं. अब जैसे आप इसको थोड़ा सा अगर हम डिटेल में पढ़ें इसका बेनिफिट, तो एंड every product goes through different stages after product dispatch, growth, development, and declination later. One of the product that hits the actual worth, if demand in the market starts sinking after a point. So you can call it a life expectancy rate of the product, and the life expectancy of any product depends upon the client request. So ABC analysis help करता है companies identify customer demand. ये पहला वाला benefit बता रहा हूँ. Often company assume that the demand for the good and ends up stocking up extra. So जो हमने दिया था कि ज़्यादा स्टॉक ना भरने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. So इसके रिजल्ट की ऐसे यू विल हैव टू मैनेज द योर इन्वेंट्री एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली. यू विल ओनली ऑर्डर द प्रोडक्ट्स ऑफर. दूसरा आता है enables negotiation with suppliers. So ABC analysis provide helpful in getting a fair deal of the product from a supplier. So for example, if you negotiating with a supplier for an A category product, you know how you have to invest maximizing since it generates the most revenue of your company. So if the supplier is reluctant to make the right offer or you accept the offer, you can आपको इसमें पता लग जाएगा किस प्रोडक्ट के लिए आपको किस लेवल तक नेगोशिएट करना है, बिकॉज वो आपको पता लगता है कि आपकी कंपनी के प्रॉफिट में या फिर पूरे ग्रोथ में कितना उसका इन्वॉल्वमेंट है. फिर दूसरा आता है इम्प्रूवमेंट इन कस्टमर सर्विसेज. सो व्हेन यू डोंट नो द एक्यूरेट लेवल ऑफ इन्वेंट्री दैट यू शुड ऑर्डर, यू एंड अप स्टॉकिंग अप ऑन अ गुड. और मतलब अगर आपको पता है आप अनलिमिटेड स्टॉक भर लोगे, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको स्टॉक बहुत मेंटेन होगा प्रॉपर्ली एबीसी एनालिसिस के ऐसे, तो कस्टमर ऑटोमेटिकली खुश रहेगा, बिकॉज वो उसको इमीडिएटली मिलेगा जो वो चाह रहा है.
In manufacturing good मतलब ABC analysis enables manufacturing to improve their life cycles of renewal of stock. It allows them to manufacture goods based on their annual cost and not produce goods randomly. So by the ABC analysis, manufacturer will be able to understand the worth of their product and only produce the good in high demand. मतलब जिसका अगर ज़्यादा सेल हो रहा है भले से पैसे वो कम दे रहा है लेकिन उसका भी डिमांड जो ज़्यादा है तो वो उस हिसाब से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी एप्पल के डिमांड ज़्यादा है पर एक बहुत लिमिटेड टाइम तक है तो लैक्स ऑफ आईफोन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है लाइक एंड लास्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड वेयरहाउस मैनेजमेंट ये दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एबीसी एनालिसिस द इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक ऑफ एबीसी एनालिसिस is used to improve the stock count of cycle in the company. For example, the good belonging to category A of ABC are counted quarterly, good in category B are counted biannually, and categories of product calculated only once. So often, when you don't know what the product worth or assume their worth, you are refused, right? So you are here. Now using ABC analysis in different way. So companies generally use ABC analysis to identify the maximum revenue generating product and the most important clients who they buy. But it is also to identify the target audience or understand their customer base. Similarly, how good are categorized जैसे ABC में हमने categorize करें on the worth of product lines are classified in the same way based on their category. जिस तरीके से वो buy करते हैं on the basis of their categorization, the businesses try to engage with the customer. Another application of ABC analysis in the pharmacies are right. जैसे pharmacy में आप देखोगे let's take example of ABC inventory analysis in healthcare of जैसे pharma में so since one third of the hospitalization budget is spent on buying material and supply especially medicine so it is necessary to have a strong inventory management जैसे आपके healthcare का सबसे ज़्यादा budget medicines पे जाता है तो अ केस स्टडी कंडक्टेड बाय एक कॉलेज ने केस स्टडी करी थी इसमें शो किया था कि इंड्यूसिंग इन्वेंट्री कंट्रोल मेजर्स फॉर मैनेजिंग एक्सपेंसिव मेडिसिन इन अ गवर्नमेंट और हॉस्पिटल जिसमें अपन ने ना 1500 बेड का गवर्नमेंट हॉस्पिटल था प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की वजह से दे आर एबल टू सेव 20% नहीं तो उनका इतना रैंडम प्रोडक्ट आ रहे थे जो किसी के काम नहीं आते थे बट उनका कॉस्ट इंक्लूडेड होता था So the pharmacy ने सबसे पहले अरेंज किया expenditure of specific medicine in descending order and then the cumulative cost of the item was calculated. Following this, both the cumulative percentage of the expenditures and the number of items were calculated. Right? तो जैसे उसमें पता लगा कि 70% में A आ गया 20 में 10 एंड C में 10 आ गया so उस हिसाब से they have distributed how they are going to take a call. The pharmacy में got a more detailed and accurate idea of demand and expense of medicine. So ABC analysis ने help किया कि कौन सा demand ज़्यादा है किसका कम है etc. This is how you can use ABC analysis and फिर एक आता है HML analysis. HML inventory analysis is a system for classifying inventory based on its usage and consumption rate. So items that are used more are classified as high आइटम्स दैट आर मीडियम एंड एल तो सेम इसी तरीके से हो गया मतलब उन्होंने एबीसी को एचएमएल की तरह दिया हाई कंजम्पशन वाले एच मीडियम वाले एम और एल वाले लो so the goal of HML inventory analysis is to ensure that the most popular item are always in stock. Both ABC और HML are almost similar, are useful method for categorizing inventory. फिर next आता है VED analysis. So VED analysis keeps a business from falling prey to some serious functional dislocation of customer care. For example, अगर जैसे कोई business है वो segregate and management नहीं करेगा अपनी inventory तो वेड analysis the risk of shortage of desirable items significantly increases. फिर नेक्स्ट आता है एस डी मतलब स्केयर डिफिकल्ट एंड ईजी नाम से पता लग रहा है तो स्केयर बेसिकली इंक्लूड दोज प्रोडक्ट दैट आर शॉर्ट इन सप्लाई आर यूजुअली इम्पोर्ट जो मतलब बहुत मुश्किल से मिलते हैं तो बहुत हमेशा उनकी बहुत कम सप्लाई रहती है क्योंकि कैंसर्स की मेडिसिन होती है या फिर कुछ प्रोडक्ट होते हैं आपको इजीली अवेलेबल नहीं होंगे डिफिकल्ट होता है इट एंटेल्स आइटम दैट आर अवेलेबल locally. However, they are difficult to stock due to limited supplier or restricted accessibility to purchasing such goods in general. It includes those stocks that requires more than fortnight time period to be available but have a lead time or a fewer than 6 months. Last आता है easy. The category includes the goods that are uncomplicated to acquire as they are available to locally produce. फिर आता है गोल्फ एनालिसिस गोल्फ मतलब जी मतलब गवर्नमेंट ओ मतलब ओपन और ऑर्डिनरी
L matlab local and F for foreigner. So basically these are the some raw material which may not be available freely in open market. These needed to be procured from government, firm and organizations only. Although there may be some materials which were not available in the local market and need to be imported in foreign countries. Such materials which fall under government or foreigner category have no longer lead items and safety stock, and such materials should be higher. And next आता है SOS analysis. S मतलब seasonal and OS मतलब off seasonal. So in the case of material or product which are seasonal in nature, it is better to buy in bulk quantity during season and to maintain stock in warehouse. जैसे मतलब कोई भी अगर प्रोडक्ट है, जैसे कुछ आप विंटर्स में अगर आप विंटर कलेक्शन होता है पहनने का, या फिर कुछ बॉडी लोशंस होते हैं, सो वो आप अपने विंटर सीजन आने से पहले ही स्टॉक कर लेते हो और उस विंटर सीजन जाने से पहले यू जस्ट मेक इट लिमिटेड स्टॉक पे. सो दिस इज अ स्ट्रेटेजी वर्क फॉर टू रीजन. ड्यू टू क्योंकि ऑफ सीजन में द प्रोडक्ट और मटेरियल में नॉट बी अवेलेबल होंगे, डिमांड बढ़ेगी तो आप पहले से भर के रखो. एंड इफ दीज आर अवेलेबल इन ऑफ सीजन तो प्राइसेस बढ़ेंगे, और अगर ऑन सीजन में होगा तो फिर लोगों को लेगा ही नहीं. लास्ट इज FSN एनालिसिस. So in this technique, classification parameters demand rate of material product, fast moving, S matlab slow moving and matlab not moving. So there should be higher stock of fast moving goods, stock of the slow motion goods should be normalized or maybe even zero. It can be ordered or manufactured only when required. For non-moving goods, company should be find a way to get rid of it. XYZ analysis, as in the classification parameter is present value of inventory. X is uh, high inventory and Y is quantity, that is low inventory. I think that's it. We have two more topics left for Unit 3. But let's first go to question answer session of ABC analysis because we have discussed this in detail. So, guys, bring it on. Please put it on chat if you have any query, and then we'll take the remaining topic in the next class. Guys, you should have questions because this was an interesting topic and it is very important also. Chandrasekhar is asking about SOS analysis. So SOS means S matlab seasonal and OS matlab off seasonal. Uh, RI 1 second, I'll show slides. Meanwhile, I'll explain seasonal. So चंद्रशेखर SI सॉरी सीजनल मीन्स कोई भी अगर आपका प्रोडक्ट है, जैसे आप ये लगा लीजिए विंटर जैकेट्स हो गए, तो उसकी डिमांड विंटर में ही आएगी, राइट. तो अब आप सीजनल के लिए आप इंसान क्या करता है, पहले से उसका स्टॉक कर लेता है. पहला मतलब बहुत पहले नहीं, कि जैसे उसकी डिमांड आने वाली होती है उससे पहले. बिकॉज अगर आप एंड टाइम पे करोगे तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, राइट. मिलेगी भी नहीं, मिलेगी तो बहुत प्राइस हाई होंगे. तो सीजनल का लिए होता है ऑफ, और आपको पता होता है कि इसका सीजन जाने वाला है, तो आप पहले से उसको उस हिसाब से कम करना शुरू कर देते हो. तो ये क्या हुआ, ये भी एक इन्वेंट्री मैनेज करने का एक तरीका हुआ कि आप कैसे इन्वेंट्री अपनी कंट्रोल कर रहे हो. कि अच्छा सीजन आ गया तो लेट्स आप लेट इकट्ठा करना चालू कर दो, और नहीं है तो अकॉर्डिंगली यू विल टेक द कॉल. So this is basically SOS analysis. I hope you can see my screen as you were requesting to. Okay, 1 second. Floor, please show all slide one by one. Please discuss ABC analysis 5 steps. Okay. Sachin, you can put it on chat. I've already got to know. First, we'll go with the ABC first 5 steps. You can take RI from there. So, सबसे पहले आप मेथड से कैलकुलेट करोगे कि कितना हमारा प्रोडक्ट है. अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक तरफ मैं एक कंपनी हूँ, मैं 5 आईफोन मैंने सेल किए हैं 1 लाख रुपए के, राइट. दूसरी साइड मैं एक उसी कंपनी में मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ जो जिसपे मैं 10 रुपए का सेल करता हूँ, बट वो यूनिट उसकी बहुत ज़्यादा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल 10,000 हो गई, तो उस हिसाब से हम इस फॉर्मूले को जज कर लेंगे कि 5 into 1 लाख 5 लाख हो गया, और एक तरफ हो गया हमारा बहुत सारे बेचने के बाद भी 50,000. ठीक है, तो इस हिसाब से प्रोडक्ट को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे. सबसे पहले सबसे बड़ा जिससे सबसे ज़्यादा होकर आईफोन ने फिर चीड़े, ठीक है. देन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हम दूसरी साइड रखेंगे. अच्छा 5 लाख तो हुआ, लेकिन 5 यूनिट से ही हो गया फायदा, राइट. दूसरी साइड हमने 50,000 तो किया, लेकिन यूनिट बेची है 1000. तो उस हिसाब से हम फिर हमारी अपनी कैटेगरी बना देंगे. अच्छा इसने 80% जिसने प्रॉफिट दिया है कम यूनिट में,
उसको हम रखेंगे ए में, इसमें 15% दिया, उसको रखेंगे बी में, उसको रखेंगे तो सी में। सो ये हो गया इसके 5 स्टेप्स। आई होप दैट इज क्लियर। दूसरा क्या है? ओके, 1 सेकेंड। तो वेट एनालिसिस शिवानी इज फॉर बेसिकली, इसमें कंपनी को किसी प्रॉब्लम में फंसने के लिए एक पहला एनालिसिस होता है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एबीसी एनालिसिस ओनली, बट ताकि बिजनेस किसी परफॉर्मेंस में या फिर ना कुछ शॉर्टेज अचानक से ना हो जाए, तो इसके लिए यू हैव टू डू दिस एनालिसिस। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट की अचानक से डिमांड ज़्यादा आ गई, किसी वजह से शॉर्टेज हो जाएगी, तो दिस एनालिसिस हेल्प्स टू कीप दैट। डेटा एनालिटिक्स डिफरेंस, what are you asking, Sachin? Please write properly. गोल्फ एनालिसिस में जी मीन्स गवर्नमेंट, ओ मीन्स ओपन और ऑर्डिनरी, एल मीन्स लोकल, एफ फॉर फॉरेनर। तो आपका कुछ प्रोडक्ट होते हैं अनस, जिसमें आपको इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता। जैसे आपको कोई मेडिसिन बनानी है जिसमें ऐसे प्रोडक्ट यूज होते हैं जो नार्कोटिक्स के होते हैं, राइट, मेडिसिन में यूज होते हैं, बट वो आपको इजीली नहीं मिलेंगे बिकॉज वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होते हैं, बिकॉज ताकि उसका मिसयूज ना हो। तो वो आपको गोल्फ एनालिसिस के अंदर आएगा। तो इसमें हमें गवर्नमेंट से वो प्रोक्योर करने, गवर्नमेंट से लेने हैं, राइट, या फिर हमें किसी ऐसे फॉरेन से मंगाने हैं, राइट, प्रोक्योर फ्रॉम ओपन मार्केट, या फिर डोमेस्टिक और सप्लायर से मंगाना। तो ये सब चीजें वी हैव टू टेक द कॉल अकॉर्डिंग टू गोल्फ एनालिसिस। So such material which fall under government or foreign category have no longer lead items and safety stock, right? This is golf analysis. सर 80 15 5 कैसे कैलकुलेट होगा? रेनू, लाइक मैंने आपको बताया था, जैसे हमने कोई एक प्रोडक्ट सेल किया है 1 लाख का, 5 यूनिट, उसकी 5 यूनिट सेल करी, तो 5 लाख का मैं प्रॉफिट हो गया। मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल। वहीं दूसरी साइड हमने प्रोडक्ट किए हैं सेल 10,000, वो हमने प्रॉफिट एक पे 10 का हो रहा है, तो हमने उस पर सिर्फ 1 लाख का होगा। तो हमें उस बेसिस पे वी हैव टू मेक कैटेगरीज। फिर एक होती है सुपर इम्पोर्टेंट, ए बी और सी, राइट। मैं आपको एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में आई ट्राई टू ब्रिंग सम एग्जांपल, ऐसा कुछ रियल वर्ल्ड। ओके Sachin, data analytics is not a part of this course, so there is no point of disturbing the class. I've already, people have told me, if this keeps on going, I'll block you from this class and you won't be able to join. Okay, thank you, Anas. Inventory control techniques. What this part of? इन्वेंट्री कंट्रोल का हमने देखो एबीसी एनालिसिस किया, ये भी इन्वेंट्री कंट्रोल का पार्ट है। ये लीफो फीफो और ये सब हम ना भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये भी है। री तो एबीसी आपने अगर आई होप क्लियरली समझ लिया हो, बाकी अब विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आई डोंट नो व्हाट योर फुल नेम इज, सो जस्ट टेल वन। अभी फिलहाल आप एबीसी अगर आ गया तो करेंगे। रेनू, आई हैव नोटेड दिस क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू ब्रिंग इन द नेक्स्ट क्लास। अगर मैं मतलब आई नो व्हाट यू आर सेइंग, तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो यार, हमारे जो अभी नेक्स्ट क्लास में आई टेक इट। Renu, just remind me also, but I'll any which ways prepare. I understood your question. Very good. इसमें मतलब बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, मैंने बताया जैसे 1 लाख का 5 इंटू हो गया, राइट। तो वो अगर वो हमारा 80% ऑफ द कंपनी के पूरे प्रॉफिट का ही रिस्पॉन्सिबल आ गया। कंपनी ने कहा कि यार 5 यूनिट बेच के ही हमें तब प्रॉफिट होगी, जो हमारा 80% प्रॉफिट है पूरा 5 यूनिट से ही, तो ऑटोमेटिकली 80% वाला उसमें चला जाता है ए में। फिर उसके बाद जो कंपनी के 15% प्रॉफिट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो आता है बी में, और जो लास्ट के 5% बचते हैं वो आते हैं सी में। तो 100 हो गया टोटल, राइट। तो जो प्रोडक्ट जाएंगे कंपनी के 80% को प्रॉफिट को लेके, वो आएंगे ए में। ओके,
Okay, team, thank you so much. It's already 9:01. I have another class. I'll see you in the next class. Goodbye. Take care.